Hi guys, Yeah, we have Arindam Das, okay, CMA qualified. He also received A at 18 in CMA. After that, he joined after the campus. He did correct. not able to join campus as he was giving exam, CS, I guess. Yeah, And then he joined CA, CA. us. CA, CS okay, also CA, qualified. CS CS also also qualified. CS also CA qualified. qualified and is giving CA exam. Okay, one group is left. Okay, and Hmm. he cleared Accenture interview and multiple interviews. So he will be giving Hmm. uh, his feedback. Okay, Insights. due to the what say load shedding, he's not able to on the camera. Okay, you can go Yeah. ahead and give the feedback. Yes. Yeah. So during my post, I received my rank. So I was not able to sit for the campus due to my CA exams and CS exams as they were scheduled back to back. So after that, I joined GS Prime mentorship from Ghanshyam sir. So I really got good mentorship because during our internships, as many of you have gone through the internships or the CMAs or CAs have gone through internship or articleship respectively, we are not properly being groomed because what we are taught in our curriculum and what the industry or the big four expect from us is quite different. So accordingly, from the material, from the daily life mock sessions, and from all the other substantial things that have been provided by Ghanshyam sirs during his regular sessions, I got a cutting edge over my competitors or over the other interviews uh, in getting a call from many of the MNCs. Likewise, I got selected in Accenture, and there were many other in MNCs I got into. But yeah, Accenture was the best offer, so I got into Accenture. So kindly refer his material, his guidance. He's want to be attentive in his mock sessions, interview sessions, and the way he crafts the resumes, builds the uh, experience things. So all these things, yeah, definitely will find you in a good position to crack the interview. Thank you, Arindam. Okay, very, very important. You make good CV. Everything is dependent on how you make the CV. And references means a lot. Okay, wherever I'm saying to apply, okay, please apply there very quickly. He applied very quickly, as I said him now, and that really makes a big So difference. don't miss any opportunities. Be initially I got much scolding from Ghanshyam sir because I was not at all attentive in the group. You follow the group regularly, those updates and those uh, references as Ghanshyam sir shares in the group, they are quite useful because referencing to get into any of your resumes or I mean MNCs or big fours plays a pivotal role. I can say definitely, yeah. References matters a lot, and his reference Yeah, he not only helped in clearing, but later on also that post also it helped. Okay, so that is what definitely, definitely, definitely. everything it helps, and I'm saying you it takes time. Even he took after joining SNDF के 7 दिन के अंदर में जॉब लग गया. It took 30-40 days. ऐसा बात नहीं. Patience is करेक्ट also करेक्ट the करेक्ट key. सर करेक्ट आराम से सर लोग ज्यादा जॉब लगा था, लगाते हैं तो ज्यादा लगा इंटरेस्ट था क्यों सर, आएगा? ज्यादा लगा था। ज्यादा लगा ना, करेक्ट, कितना 60 ज्यादा दिन लगा, लग गया. हाँ पेशेंस, 60 हाँ दिन हाँ डेली अप्लाई करते थे, डेली अप्लाई करते थे, 10 15 60-70 दिन 20। लग गया था. हाँ, जल्दी हाँ हम लोग हाँ हाँ लगाते हाँ नहीं, हाँ फिर हाँ जल्दी लगाने से वो फिर है ना लोग ना फिर वो करता है थोड़ा सा. थोड़ा टाइम लगा के लगाने से इज्जत भी देता है थोड़ा सा. इसलिए तो आदमी को लोग को तो लेता है कि एकदम आते ही लगा दे, मतलब होता है ना ऐसे. कोई को लग जाता है, आपको को लग जाता है, तो ऐसा नहीं है. ऊपर वाला का भी इच्छा होता है, बट इट टेक्स टाइम जनरली जॉब सीकिंग में. तो यू हैव टू कीप पेशेंस ऑल्सो. Patience is required throughout rejection. Here he got rejected in Consero Global also. It's not that he Accenture निकल गया. Consero Global में इनका क्यों हुआ था रिजेक्शन? क्योंकि इमीडिएटली शेड्यूल करा लिए थे इंटरव्यू. करेक्ट करेक्ट, राइट. हाँ वो गलती हुआ हाँ, था, वो गलती हुआ था, मैं आपका सुना नहीं था सर। करेक्ट सर, राइट राइट राइट। इमीडिएटली शेड्यूल करा लिए. वो भी हम लोग ही शेड्यूल करा के दिए थे कंसिरो भी. तो ऐसा बात नहीं है कि, बट बात ये है कि आपको थोड़ा सा गलती होगा, पर टेंशन वाली बात नहीं है. इट विल बी डन. ठीक है. आई विल थिंक बी डन, आदित्यम हाँ। आपको यहाँ पर बहुत मतलब सारा सीवी और एक चीज, एकदम. एक बोलिए. एक कभी रिजेक्शन आ जाए तो ऐसा मत सोच लेना आप लोग कि आगे कुछ होने ही वाला नहीं है, शायद कोई बहुत बड़ी कंपनी आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। हाँ, तो अभी वही. घनश्याम सर वैसे वो गाइड तो कर देते, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ रिजेक्शन आ ही सकता है। देखो रिजेक्शन आ ही रिजेक्शन हो सकता है, जैसे गई. अपने सीए रिजेक्शन सीए इज में क्वाइट बनते हैं तो कॉमन. उसमें भी रिजेक्शन आते हैं। तो पेशेंस हाँ इज क्वाइट रिजेक्शन तो इंपॉर्टेंट. आते हैं। हाँ दैट पेशेंस इज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्वाइट. आई एग्री सर, आई एग्री सर, आई एग्री सर। हाँ, पेशेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इनका भी रैंक आया तो टाइम तो लगता है ना जॉब लगने में.
तो बहुत हाँ लोगों का हाँ हाँ पेशेंस हाँ रहता हाँ अभी, सर। अब तो इतना डिग्री आ गया, चलो 1 महीना के अंदर जॉब मिल जाएगा, 2 महीना के अंदर जॉब मिल जाएगा, नहीं होता ऐसे। आपको टाइम कुछ लगेगा नहीं जॉब होता। निकालने में, अच्छा जॉब निकालने के लिए टाइम लगता है। इनको जो पैकेज मिला वो सीए को भी नहीं मिलता है। करेक्ट करेक्ट ठीक है। करेक्ट। ठीक है, ये तो डिग्री वही मैं काम में आ बोलना चाह रहा हूँ, गया। सुन के। ये डिग्री काम पैकेज में रिवील नहीं कर सकते, पर दैट इज द थिंग आई वाज सेइंग। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि रैंक के कारण है, दैट इज आल्सो द नॉट द थिंग। पर हाँ, अगर नहीं आप नहीं, पेशेंस देखो रखेंगे। रैंक हाँ, होना, डिग्री लाना दूसरा गेम है, और जॉब के अंदर घुसना और अच्छा प्रोजेक्ट्स में घुसना ये पूरा टोटल अलग गेम चलता है। And जहाँ पे जीजीएस प्राइम मेंटरशिप मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। उन लोग का मटेरियल, मॉक इंटरव्यूज बहुत अच्छे, और वो क्या ना, आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीकिंग पावर ये बहुत अच्छे से बनता है। जैसे अपना ये आर्टिकलशिप वगैरह में ये ब्रशअप अपना अपना होता नहीं है। तो ये अगर आप लोग डेली, हाँ थोड़ा लगेगा कि यार क्यों कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएगा, लेकिन कॉल ना कभी भी आ सकता है। कल ही बोल देगा कि कल आपका इंटरव्यू है, तब जाके फंस जाओगे। तो उस टाइम तो आपको करने का ये मौका नहीं मिलेगा। तो आ ये चीज सकता है। है। और इनका क्वेश्चंस काफी टफ था, मैंने देखा था। इंडेक्स इंडेक्स कुछ भी पूछ हाँ लिया था, हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ नॉर्मल हाँ हाँ हाँ। तरीके से क्वेश्चन पूछा था। इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन पूछ लिए थे ना। इकोनॉमिक्स का पूछा था, हाँ हाँ हाँ, डीएमयू का क्वेश्चन पूछा था ना। इकोनॉमिक्स का क्या मेरा पूछा था, 45 एक दो फीट। क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जैसे बताइएगा तो क्या, सारा मत जैसे बताइए। जैसे जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, या फिर बजटिंग और फोरकास्टिंग एनालिसिस करके बताओ। मतलब ऐसा क्या नहीं, इधर ना मतलब आज का जो ट्रेंड चल रहा है, तो उधर आपको ये नहीं कि फोरकास्टिंग का डेफिनेशन बताओ, बजटिंग का डेफिनेशन बताओ। ऐसे नहीं होता है। केस स्टडी बताएगा, बोलेगा कि ये बजटिंग है कि फोरकास्टिंग है, और जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, लेकिन आप बताओ उसको। तो जैसे वही टफ आर होता है। टू आर का आर टू आर का एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं आपको, आर टू आर प्रोफाइल के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त अभी आर टू आर में लगवाया उसको। वो आपको एक सिचुएशन देगा, आप बोल देगा कि मंथ एंड क्लोजर एंट्री आप कैसे मारोगे, और क्लोजर एंट्री मार के आप एक्सेल में कैसे इसको इम्प्लांट करोगे, और अगर आपको टैली वगैरह आता है तो टैली वगैरह। एक चीज आप लोग प्लीज ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं बोलना अपने बारे में। मतलब आपका अगर एकेडमिक अचीवमेंट्स होता तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, आप लोग फ्लॉन्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे को सैप आता है, टैली आता है, ये आता है, वो आता है, अपना कबर खुद खोदोगे। ये कभी मत करना, क्योंकि उसको भी पता है आपको कितना आता है, वो आपको परेशानी में डाल देगा। तो हाँ, मेरा जैसे 50 मिनट्स का, हाँ सर 50 मिनट्स का करीबन इंटरव्यू हुआ था मेरा। तो इधर उधर क्वेश्चंस तो आ ही रहा था। मैं कुछ भी पूछ लेगा, कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आई मीन इंडेक्स से पूछ लिया। अब इंडेक्स से पूछा, खत्म हुआ आपका आंसर, खत्म हुआ कि नहीं, आपको बजटिंग और फोरकास्टिंग पूछ लेगा। फिर आपको लाइन लाइन आइटम्स क्या होता है ये पूछ लेगा। स्टॉक पाइलेशन को आप कैसे शो करते हो ये पूछ लेगा। सो जिगजैग बहुत सारा होता है। आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं, मानो आप लोग में कि कोई सीएमए है या फिर सीए है, उसको पूछ लेगा, जो सीए है वो बोल लेगा कि यार आपका तो डिग्री, आप तो सीए हो। तो जैसे मेरे को पूछा था कि आप सीएमए वाला काम कैसे, मतलब फोकसिंग वाला में कैसे आप एडजस्ट हो पाओगे, कि क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी तो खाली कॉस्ट में कॉस्ट रहता है उसमें, और या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे तो उसमें तो खाली अकाउंटिंग रहता है, आप कॉस्ट का काम कैसे कर पाओगे। सो उसमें योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर वे ऑफ आंसरिंग, ये जो आप घनश्याम सर आपको डेली करवाते हैं, इससे आपका सही होगा। कि उधर खाली आपका स्मार्टनेस भी देखता है, क्योंकि सी आई एम वर्किंग विथ, आई हैव मेंशन विथ वन ऑफ द टेक जाइंट कंपनीज मेरा प्रोजेक्ट है। तो उधर डेली मेरे को यूएस वाले लोग से बात करना होता है, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आपका चेक करता है, क्योंकि आप जैसे देखोगे बहुत सारे लोगों का आंसर्स लगता है, हाँ मेरा क्लियर हो गया, मैं आंसर सब दे पाया, फिर भी कॉल नहीं आता है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन में उधर रह जाता है। सही है कि नहीं घनश्याम सर? एकदम। और एक चीज है, अभी आपको ना मेल्स आ जाएगा, तो आप एक बार देख हाँ सर। लीजिएगा। एक तो हम लोग का एमबीए भी है इधर में, एमबीए सीएमए सीए सभी है। एक पेज एमबीए का का सीवी एक एमबीए बार का देख लीजिए। कितना एक्सपीरियंस है सर? एमबीए का कितना एक्सपीरियंस है सर? एमबीए अपन में रिलेशनशिप मैनेजर होगा, कोई एमबीए स्टूडेंट होगा बेसिकली, तो उस तरीका का होगा ज्यादा। एमबीए का समझे। देखो, एमबीए का रिलेशनशिप मैनेजर, ये समझा नहीं मैंने। एक एमबीए रिलेशनशिप मैनेजर में काम करता है, ठीक है। हाँ 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 और हाँ। एक एमबीए बस वो कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज कंप्लीट करके अरे आया सर क्या है। सॉरी, अब ये मुंह मैं से अलग निकल से गया। अलग से नहीं, अलग से अलग बोलते से बोलते मेरे को भेजना, हाँ, मैं बात कॉलेज करता हूँ कंप्लीट इसे। किया है। ठीक है, कॉलेज कंप्लीट किया, इसमें उत्कर्ष ना। इसमें अलग से कॉलेज कंप्लीट हुआ है ना आपका। सर हाँ जी। नहीं सर, 3 इयर्स एक्सपीरियंस है सर अकाउंट्स। वो 3 इयर्स कहाँ पर काम किया आपने। कौन सा डोमेन में है सर आपका, कौन सा डोमेन में एक्सपीरियंस है सर? सर अकाउंट्स में ही था, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी बाबा इंडस्ट्रीज, ओके। वहीं पे वर्क था सर।
अच्छा, मैंने और उनकी आपका अकाउंटिंग देखी होती थी सर पहले। अकाउंटिंग में वो दैट इज फाइन। आप ये बताओ सर मेरे को आपका अच्छा, एक बात आप सबको मैं बोल देता हूँ, दो चीज प्लीज आप लोग नोट कर लो, ठीक है? जैसे अब जिसका यस कोई एक बंदा मेरे को फोन किया था, उससे वो हुआ था, हर एक चीज एक्सचेंजर के बारे में आपको बोलता हूँ, हर एक चीज ना, मतलब वो आपका फॉर्म फिलअप से लेके जिसका कोई सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं तो रहूंगा ही, आपको फॉर्म गाइड टू वन गाइड कर दूंगा, कब फिल करना है, कैसे फिल करना है, बट प्लीज कॉल मी आफ्टर माय ऑफिस आवर्स, मैं कर दूंगा। कॉल नहीं लेकिन करेगा वो, एक बात, टेंशन। अरे नहीं नहीं, मैं भी तो किया था भैया भैया, मैं भी तो हाँ किसी को कोई किया था, दिक्कत तो मेरा नहीं, नहीं। दिक्कत तो नहीं। वो अगर आप कहीं पे गड़बड़ कर दिए ना, तो आप एक साल के लिए ब्लॉक डायरेक्ट हो जाओगे। एक साल हम बोला था तो ना, एक साल, एक 6 महीना बोल रहा था, ये कौन कभी, कोमल बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, छह नहीं, एक एक साल। साल का, एक साल का पढ़ने। और एक चीज आप लोग याद रखना करके कि जैसे आपका मानो, जैसे उत्कर्ष जी आप अभी बोले कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास यस। रिलीविंग लेटर होना चाहिए, हाँ आपके पास बैंक का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, मतलब कुछ गलत है मत सर। बोलो मेरे भाई, क्योंकि अगर बहुत यस जन सर। बोलेगा कि ईमेल चेंज कर दो, भाई ये लोग पैन नंबर ले लेता, और पैन कोई पैन चेंज नंबर नहीं से कर ब्लॉक सकता, तो करता है। एक एक साल के लिए तुम गया, तो मतलब आपको एक्सचेंज में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा अगर एक्सपीरियंस है बहुत तो। बहुत कुछ, ये बहुत सब कुछ है भाई, सर, बहुत कुछ, रिलीविंग है बहुत और बहुत बैंक बहुत बहुत। स्टेटमेंट्स है सर, हाँ, सैलरी और अकाउंट और का और जो है। आपका एडुकेशन क्या किए बीकॉम के बाद? सर एमबीए फाइनेंस मतलब 2022 से 24 में कंप्लीट हुआ है, अभी इसी कंप्लीट जून हो में। गया ना? हाँ। ठीक है, आपका मैं थोड़ा देख सकता हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका ना मतलब पोस्ट एक्सपीरियंस मांगता है कि विथ दैट एक्सपीरियंस होता है उसका ना, थोड़ा रहता है, जैसे सीएमए का पोस्ट एक्सपीरियंस 1 साल, या फिर एमबीए का पोस्ट एक्सपीरियंस, एमबीए पोस्ट एक्सपीरियंस 3 साल। तो मैं देख के आपके साथ कनेक्ट कर लूंगा, आप घनश्याम सर से मेरा नंबर ले लो, मैं आपका देख लूंगा। तो कोई ओके सर, दिक्कत नहीं है, थैंक यू। ठीक है। मैं ठीक है सर, आपको हाँ मेल सर, करवा दूंगा। मेन चीज हाँ आप सर, है ना, हाँ सर, सबका भी हाँ जो सर। जो सीवी आ रहा है, एक एक पेज का सीवी बनाइए। R2R का हम्म। एक्सपीरियंस लिखिए। आपका कोई सीवी होगा तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, रिंदम जो गया था ना उधर में, पर्सनली मेरा मेरे को ये एक मेरा मेरा मैं R2R के लिए तो कभी अप्लाई नहीं किया, मेरा दोस्त लोग है उधर R2R EFM में, में मैं किया कल था। परसों में हाँ वो करता मेरे हूँ। को भेज हाँ, दीजिए। मेरा तो सीएफएम का है वो, मैं सीएफएम का कर पर देता आर हूँ। टू आर और में लगाइए, R2R में जल्दी लेगा ये आर लोग टू को। आर में R2R, हाँ हाँ हाँ, R2R में चला, R2R में देखिए मैक्सिमम पुणे लोकेशन है सर, मैक्सिमम पुणे लोकेशन। मैक्सिमम पुणे है, और पुणे बेंगलोर का है पुणे क्या कोई पुणे काम? पुणे पुणे बेंगलोर, बेंगलोर, बैंगलोर में जयपुर। सीएफएम का अभी थोड़ा बंद है, सीएफएम का शायद अक्टूबर एंड नहीं, से आएगा। R2R बोल रहे हैं हम, R2R में बेंगलोर है नहीं क्या नहीं R2R? नहीं 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 नहीं, बैंगलोर में नहीं है, पुणे और मुंबई चल जयपुर, रहा है R2R। जयपुर। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 मेरे पास कल ही मेल आया था, पुणे और आटू इसके लिए मांग रहा है, मुंबई। मेरे को भेज दीजिए आपका सीवी एक बार ना, जो भी R2R का जो भी होगा ना, ठीक है, आटू आटू वो आर का भेज दीजिए। मेरा दोस्त है, मैं कल मंडे कल भेज देता हूँ आपको। अगर R2R कीवर्ड्स वगैरह क्या क्या डालना पड़ेगा R2R में, जब डलवाया था? आर्ट आर्ट के लिए आर टू आर के लिए देखिए, जैसे फाइनेंशियल R2R के लिए क्या है हाईलाइट करना पड़ेगा, मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे जितने भी अकाउंटिंग के ज्ञान है ना, मानो फाइनेंशियल हाँ रिकॉर्ड्स, हाँ फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हाँ अकाउंटिंग, बुक हाँ। कीपिंग, ये सब जो जितना अकाउंटिंग का ज्ञान हो सके है अकाउंटिंग झाड़ का दो, उससे ले लेगा ऑडिट ये टैक्स नहीं ऑडिट डालना के। है ज्यादा। ना हम्म। ना ना, और टैक्स तो नहीं डालना है,